ہے اور آل دا وے فرام ڈیلس سے جی ہم اعزاز لینا چاہیں گے یہ کیونکہ بنیادی طور پہ ایک دینی مسئلہ ہے یا موضوع ہے تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ہم اپنی کسی اسلامی اسکالر کو آن لائن لیں، ان کا نقطہ نظر جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہے ان سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ کے روبرو کروں ایک عالم اسلام کے انتہائی جید، انتہائی نوجوان، اور جو بات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، لیکن پر دلیل ان کی بات ہوتی ہے۔ بالکل نوجوان ہیں، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے نارتھ امریکہ میں اپنا علماء کے لیول پہ جو اپنا مقام بنایا ہے وہ ایک قابل تحسین میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے روبرو کروں محمد حسن الیاس صاحب کو۔ محمد حسن الیاس صاحب کا تعلق المحیط انسٹیٹیوٹ سے ہے، جو کہ وہ لنگوسٹک عرب جو قدیم عربی زبان ہے اس کے لٹریچر اور زبان پہ عبور رکھتے ہیں، ایک عالم دین ہیں، کسی بھی مسئلے کو انتہائی گہرائی اور گہرائی سے لے کے چلتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں انتہائی پر دلیل بات سے آپ تک بات پہنچاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حسن بھائی کو، حسن الیاس صاحب کو لائن پہ لوں۔ حسن صاحب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی حسن صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضور؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، بے شک۔ حسن صاحب، سب سے پہلے تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے کچھ ٹائم نکالا، اور ہم چاہیں گے آپ کو، جیسے کہ علم میں ہے کہ کینیڈا میں ایک مسیساگا، ٹورنٹو اور جی ٹی اے کے علاقے میں ایک نئی رمضان میں روش پڑی ہے کہ دن میں ایک بار اذان کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اذان خود کیا مقام رکھتی ہے، اس کا بنیادی سگنیفیکنٹ، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا بنیاد ہے، اور اس تناظر میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی حسن الیاس صاحب۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ وہ بات جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس کے شعور میں موجود ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کو ارادہ اختیار دیا ہے، اس کو نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے وہ ایک منعم حقیقی خالق کی تلاش میں ہے، اس خالق کے ساتھ وہ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ انسان چونکہ ایک خارجی وجود بھی رکھتا ہے تو اس کا یہ تعلق ایک سمبولک اظہار کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ انبیاء نے اس تعلق کے اظہار کے لیے جو عبادت مقرر کی ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز اصل میں بندے اور خالق کے تعلق کے ظہور کی علامت ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو گویا خالق کے آگے جا کے سربسجود ہوتے ہیں، اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا پالن ہار بھی تو ہے، یہ نعمتیں بھی تو نے دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کو کے استفادے کے نتیجے میں میرے اندر سے جو جذبہ شکر و صفات پیدا ہوتا ہے، میں اس کے لیے بھی تیرا ہی ممنون ہوں۔ تو تیرے ہی آگے میری تمام عنایتیں ہیں، اپنے خشوع، اپنے تذلل خدا کے آگے جھک کے ہم خود کو بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں اور خالق کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام ہیں۔ یہ جو عبادت مقرر کی گئی ہے نماز کی، اس کو ادا کرنے کے جو ریچولز ہیں ان میں اگر آپ اجتماعی طور پہ خدا کے آگے سربسجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء نے جو سنت قائم کی ہے نماز کی، تمام انبیاء کیا نماز ایک ہی تھی۔ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اس کا آغاز سورۃ سلم سے نہیں ہوتا، بلکہ تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو اس عبادت کو اجتماعی سطح پر ادا کرنے کے لیے مساجدیں بنائی گئی۔
तो अब मस्जिद में जाकर जब हम नमाज अदा करते हैं तो जमात की नमाज कायम हो, उस जमात की नमाज की जो शरीयत कायम की गई है उसमें आज़ान को बतौर सुन्नत जारी किया गया है। ये आज़ान क्या है? ये आज़ान असल में पूरे दीन की दावत का एक खुलासा है। उस खुलासे को इस्तेमाल कर दिया गया इस मकसद के लिए भी कि लोगों को जब याद दिलाना हो कि अब खुदा के सामने हाजिरी का वक्त हो गया है तो अलल ऐलान वो अज़ान अदा कर दी जाती है। आप कभी गौर करें, जो अज़ान के अल्फाज हैं, पूरा कुरान, पूरी सुन्नत, अंबिया की पूरी दास्तान, इंसानी फितरत की पूरी गवाही, इन सब को चंद जुमलों में अल्लाह ताला ने समेट दिया है। गोया पूरी इंसानियत की दावत है जो अज़ान के अंदर पिन्हा है। क्या है अज़ान के अल्फाज के? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस कायनात का खालिक, मालिक, पालनहार है, वही है जिसने हमें बनाया है, उसी के आगे हमें झुकना है। और फिर कहा कि ये अल्लाह का तारुफ कैसे होता है? उसके रसूलों के जरिए। तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, और अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह वाहिद है, यकता है, यगाना है, उसका बेहिम्मता है, उसका कोई साजी नहीं है, उसका कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, उसका कोई बॉस नहीं है। और फिर हम इस बात की गवाही देते हैं कि उसके साथ अपने ताल्लुक का इजहार कैसे होगा? नमाज के जरिए। नमाज क्या है? जिंदगी है। कुरान ने इसको दूसरी जगह पे बताया, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना, मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। तो वो जिंदगी के मुकाबले में नमाज को रख के बता दिया कि जिंदगी की अलामत है नमाज, यानी मेरी जीने के इजहार कैसे होगा कि मैं खुदा के आगे शुक्र अदा करूं? वो नमाज के जरिए होगा। और खुदा ने बताया कि अकीम सलात लिज़िक्री, मेरी याद दहानी के लिए नमाज कायम करो। तो हम आज़ान के अंदर जब ये कलिमात सुनते हैं तो ये कलिमात हमें बता रहे होते हैं कि नमाज की तरफ बुलाना असल में कामयाबी की तरफ बुलाना। वो कामयाबी क्या है? कि एक दिन हमने मरना है और मरने के बाद खुदा के सामने पेश होना है, और वो खालिक को अगर हमने दुनिया के इम्तिहान में राजी कर लिया तो फिर जन्नत का ऐशे दवाम हमारा मुंतजिर है। खालिक हमें अपनी अबदी बादशाही में शरीक कर लेगा, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यही कामयाबी है, और फिर वही बात दोहराते हैं और इससे आज़ान का खात्मा हो जाता है। तो ये आज़ान के कलिमात और अल्फाज पूरे दीन की दावत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मगरबी ममालिक में अगर मुसलमानों को इस चीज की इजाजत मिलती है कि एक लंबे अरसे तक मुसलमान ये तो करते थे कि सुन्नत को कायम करें, और वो दुरूने खाना मस्जिद के अंदर स्पीकर्स में कायम होती थी, लेकिन अगर उससे बाहर निकल के कायम करने की भी मुसलमानों को इजाजत मिली है तो मेरे लिहाज से ये बड़ी खुशाइंद बात है। खुशाइंद बात दो पहलुओं से है। पहला पहलू दावत का, यानी हम खुदा की इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग इसका एहतमाम कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि वो अगर आज़ान के बाद इसके कलिमात का तर्जुमा भी स्पीकर पे लोगों को सुना दें, ताकि वो आदमी, वो गैर मुस्लिम जो इन कलिमात के तर्जुमे से वाकिफ नहीं है, उनको भी मालूम हो कि इसके अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है, उनको भी मालूम हो कि ये आज़ान दर हकीकत अपने अंदर क्या मानी और क्या मफाहिम और क्या मतालिब और क्या तावीलात रखती है, ताकि दावत का एक ऐसा मुस्तकिल सिलसिला आपके हाथ में आ जाए जिसके जरिए से आप लोग रोज हजारों कानों तक अल्लाह की ये बात पहुंचा रहे हो। तो अगर किसी को किसी जगह में, किसी खत्ते अर्ज में इजाजत मिलती है तो वो इसका भी एहतमाम करे कि वो तर्जुमा साथ पढ़ दे, आज़ान खत्म हो और उसके बाद तर्जुमा आ जाए। दूसरी चीज ये है कि आलमी तौर पे मजहब के बारे में, खुसूसन इस्लाम के बारे में मगरिब के अंदर एक बड़ी हसासियत पाई जाती है। उस हसासियत को पेश नजर रखते हुए जितनी इजाजत मिली है उस इजाजत को जिसको आप कहते हैं मुतालबों के अंदर ढाल के बढ़ाने की कोशिश करना, या उस इजाजत की बुनियाद पर लाउड स्पीकर का एक गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल जिसकी वजह से लोगों की अजियत या फजीयत का बायस बने, इससे बचना चाहिए। लिहाजा जो कवानीन है, जो रेशो रखा गया है साउंड का, क्योंकि होता क्या है आमतौर पर कि जिस वक्त आप अजान दे रहे होते हैं, जाहिर बात है मुसलमानों के लिए तो बड़ी फजीलत की बात है, अल्लाह ने अगर उनको ये कलिमात सुनने की सआदत दे दी है, लेकिन गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं, बीमार भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, वो इसको कैसे रिसीव करेंगे? तो इस सोसाइटी का जो हसासियत है इसका जायजा लेकर जो कवानीन मुकर्रर किए जाएंगे, और कवानीन हमेशा इन्हीं उसूलों पर होते हैं कि किसी की एकतलफी ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो, कोई उसके नतीजे में तकलीफ में मुब्तला ना हो। तो इसको सामने रख के
कोशिश ये करें कि किसी भी तरह से लोगों की अजियत का बायस ना बने, और अगर एक वक्त इजाजत दी गई है तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हम इसको इतनी खूबी के साथ निभाएं, लोगों को इसके जरिए अमन का पैगाम भी दें, तो अल्लाह करे कि इसके नतीजे में आप हमें जिस तरह चर्च के अंदर जितने भी औकात में घंटी बजाने की याद होती है, हम मुसलमानों को भी ये अजान सुनने की सुनाने की इजाजत मिल जाए इंशाअल्लाह ताला लज़िम। चले कि भाई वो अजान में पुकार किस चीज़ की हो रही है। जी। तो हसन साहब, आपके इस तजवीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, इससे पहले भी जो कॉलर्स आए हैं। हम चाहेंगे कि इस बातचीत को जो कि अभी हुई है, आप इसको अपने अंदाज से उसको एंड अप समेट दें, करें, जी। समेट दें उसको कि आप क्या समझते हैं कि आगे अब क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो तक दुनिया जिस जगह पे पहुंच गई है और जमहूरियत में इंसान को हक़ खुद इरादी, इजहार राय की आज़ादी, अपनी हैसियत को मसावी सतह पर मनवाने की जो अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इनको सामने रख के मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए बहुत बड़े मौक़े हैं जो मगरबी ममालिक में खुल गए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये उससे बड़े मौक़े हैं कि जो खुद उनके मुस्लिम अक्सरियत ममालिक में भी उनको मैसर नहीं है। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप की बाकी रियासतें हों, कानूनी लिहाज से मुसलमानों को जो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो बराबर के शहरी होने की हैसियत से और दस्तूरी रियाज से जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसको सामने रख के अगर हम चाहें तो बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और मौजूदा दौर में ये अपॉर्चुनिटीज और भी खुल गई हैं। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी बात को, अपने नुक्ता नज़र को दुनिया तक पहुंचाने में आज़ाद हैं। इस दौर के अंदर इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए है। हमारे यहाँ ये बड़ी लंबी बहसें रहीं दारुल इस्लाम, दारुल कुफर की, और वो नस्ल जो 60, 70, 80 की दिहाई में यहाँ पर आई थी, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रही और एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रही कि इन ममालिक में वो रहें, यहाँ की शहरियत लें, यहाँ पर मुस्तकबिल बनाएं, दीनी लिहाज से कैसा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक मुस्बत पैगाम दें, और ये जितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर मजहब इस्लाम को सुनने वाले लोग कम तादाद में मौजूद हैं, उसको एक दावा अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। और ये दावा स्टेट्स हैं असल में, और मुसलमान अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से, अपने कारोबारी मामलात की मिसाल से दुनिया को ये पैगाम दें कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो अदल, इंसाफ, इखलाकियात की दावत देता है। हम लोगों को उस बेसिक पैगाम की तरफ लेकर आएं कि इंसानों एक दिन हमें मरना है और उस खालिक के हुजूर में पेश होना है, लिहाजा उसकी पेशी के आगे जवाबदेही के अंजाम से बचते हुए हमें दुनिया में नेकी और बदी का रास्ता इख्तियार करना है। तो ये नेकी और खैर की दावत है जो हमें देनी चाहिए है। आज़ान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत इस माने में कि इसके जो मौजूद कलिमात हैं ये खुदा ही के मुंतखब करदा हैं, और आप सोचें कि खुदा की दावत को खुदा ही के अंदाज में अगर पहुंचाने का वक्त मिल जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये वक्ती अपॉर्चुनिटी है, इससे कतई नजर हमें लोगों को अजान के कलिमात वैसे पहुंचाने चाहिए। और अगर सरकारी सतह पर इस पर कोई कदगन आयद होती है, इससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को मौजूदा दौर में आप टेक्नोलॉजी के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं। मुसलमान जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मस्जिद से कोई ऐसा रब्त, एक लिंक कायम हो जाए कि वहाँ अजान दी जाए तो घरों में अजान बजना शुरू हो जाए। तो ये मुतबादिल की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस सबको एक दावा अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से मुस्तकबिल में लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत हसन साहब, मैं क्योंकि आप मौजूद हैं और मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहूँगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जब मोहम्मद हसन इलियास साहब ऑनलाइन हो तो उनसे सवाल पूछ लीजिएगा कि उनका ओपिनियन क्या है कि अजान, देखिए जमात अगर नहीं है और कोई साहब अकेले घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या आपका कहना है कि अजान दी जाए और या बगैर अजान की नमाज पढ़ ली जाए? ये एक सवाल था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपसे मैं पूछ लूँ। जी, मैं उसूली बात बता देता हूँ कि दीन में जितनी भी इबादात मुकर्रर की गई हैं वो मुकर्रर तो खुदा ने की हैं, लेकिन उन इबादात की हुदूद और शराइत की रियायत से उनको नफलन भी अदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं 4 रकअत, तो अगर हम चाहें तो इसके अलावा भी नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं हुदूद और शराइत की रियायत से। यानी नमाज के लिए हुदूद और शराइत क्या है? जब मिसाल के तौर पे वो
गुरूब का वक्त ना हो, या मिसाल के तौर पे आप बावुजू हो, ताहिर हो, मुताहिर हो, इन शराइत की रियायत से आप नफलन भी इबादत को अदा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उनकी हैयत को या उनकी हुसूसी शराइत को तब्दील करेंगे तो ये दीन में एक नई चीज पैदा करने के मुतरादिफ होगी। मसलन मिसाल के तौर पे इस वक्त कोरोना वायरस के ज़िमन में बाज लोगों ने इज्तिमाई तौर पे अजान देने का इजहार किया। अब अजान आप नफली तौर पे घर पे दें, वैसे दें तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई बच्चा अजान के कलमात पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप उसको किसी खास मौके पर मुतय्यन कर देते हैं तो अब आप असल में उसकी हुदूद और शराइत में इजाफा कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर घर पे कोई अजान देना चाहता है तो अजान की कलिमात पाकीज़ा कलिमात हैं, जो चाहे उसको पढ़े। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बंदे रहने का।